Actually, spinal cord is present within what? The हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़े थे न्यूरल कैनल ऑफ द वर्टिब्रल कलम through which the spinal cord is passes. And remember, spinal cord growth and vertebral column growth is to be occur up to the age of 4 to 5 years. So, spinal cord का first of all इसका जो length है that is 40 to 45 centimeter long. Up to 4 to 5 years of age, both spinal cord and vertebral column grows simultaneously. And after that, the spinal cord growth stops. But vertebral column grows up to adolescence. तो इसीलिए हम लोग जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड का जो साइज है वो छोटा होता है, वर्टिब्रल कलम का साइज बड़ा होता है. लेट्स सी. डायग्रामेटिकली हम लोग देखते हैं. जल्दी करिएगा. ये जो हम डायग्राम कर रहे हैं ना, ये क्या है ना, स्पाइनल नर्व्स. स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जो रिलीज होता है, दीज आर कॉल्ड एज स्पाइनल नर्व्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लेट्स हैव सम लेवलिंग ऑफ दिस. दिस इज cranium. This is cranial cavity. This is the brain. This is foramen of magnum. याद है? This is spinal cord. This is vertebral column. Vertebral column का जो cavity है उसका नाम क्या है? Neural canal. Through which the spinal cord is passes. These are actually the spinal nerves. And spinal nerve का नंबर कितना है? What is the number of spinal nerve? 31 पेयर होता है, याद है ना? And 31 पेयर में से इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा ना? सर्वाइकल पोर्शन में 8 पेयर, थोरैसिक पोर्शन में 12 पेयर, लंबर पोर्शन में 5 पेयर, सैक्रल पोर्शन में
5 pair and coccyx portion में 1 pair. All are in pair. तो इसीलिए क्या है? What is the spinal formula? 8, 12, 5, 5, 1. All in pair. Now see, स्पाइनल कॉर्ड देखिए टर्मिनेट हुआ है, आपको दिख रहा है स्पाइनल कॉर्ड एंड हुआ है, एक पॉइंटिंग पोर्शन है. दैट पॉइंटेड पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड एज, यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलम टर्मिनल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोनस मेडुलरिस? क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलम टर्मिनल and what is the meaning of conus medullaris? ये जो pointed part है, this is called as conus medullaris. This pointed part is called as conus medullaris. तो conus medullaris क्या है? It is a part of the spinal cord. Yes or no? So this is the tapering part. Tapering end of the spinal cord. तो spinal cord है तो ये nervous होगा कि non nervous होगा? Nervous होगा. So that is why conus medullaris is the tapering end of the spinal cord which is nervous in nature. But हमने अभी बात किया स्पाइनल कॉर्ड का ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाता है at the age of 4 to 5 year. And spinal cord is a part of the central nervous system. And central nervous system is covered by the meninges. याद आया? Pia mater, arachnoid, dura. After the age of 4 to 5 years, this vertebral column will continue to grow. So जैसे vertebral column grow करता है, तो ये जो pia mater है जो कि spinal cord के चारों तरफ भी present है, वो धीरे-धीरे stretch हो जाता है. And that stretching of the pia mater of the meninges of spinal cord, that gives rise to a structure which is formed is called as terminal. Filum terminal क्या है? It is the extension of what? Pia mater. And pia mater हम लोग पढ़े थे क्या था वो? Connective tissue. याद आया? तो फिर filum terminal nervous होगा कि non nervous होगा? Non nervous because it is a extension of pia mater. And the last is, as you can see, in the hind part of the spinal cord, hinder part of the spinal cord, there is a mass of the spinal nerves are present, and just looks like a tail of a horse, and this is called as cauda equina. Cauda equina. Cauda equina, horse tail shape. Cauda means tail. Equina means comes from the word equus. Equus is the scientific name of what? Na horse. So cauda equina, horse tail shape, and actually what? The group of spinal nerve and hinder part of spinal cord. इसका कारण क्या है? As because you know just I've told you कि spinal cord का growth तो stop हो जाएगा, लेकिन ये spinal nerve तो अपने exact location में बाहर नहीं निकलेगा ना. What is the number of cervical spinal nerve? Na 8 pair. Why it is called a cervical? Because this 8 pair is come out through the cervical vertebrae. This 12 pair comes out through the thoracic vertebrae. Likewise, the 5 sacral spinal nerve will come through the sacral vertebrae, and the last pair is passes through the caudal vertebrae, that is tail vertebrae or coaxial vertebrae.
तो कॉक्सिक वर्टिब्रे तो हो नहीं, क्योंकि कॉनस मेडुलरिस जो पॉइंट है आप देखेंगे कि कॉनस मेडुलरिस का पोजीशन क्या है ना, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ना L1 to L3, L1 एंड L2 मतलब क्या है, कॉनस मेडुलरिस का पोजीशन क्या हो जाएगा ना, फर्स्ट लंबर एंड सेकंड लंबर के पोजीशन में कॉनस मेडुलरिस है. व्हाट इज द पोजीशन ना, L1 and L2. This is the exact position of the conus medullaris. मतलब आप सोचिए कि L1 L2 के बाद स्पाइनल कॉर्ड है ही नहीं, तो फिर स्पाइनल नर्व बाहर कैसे निकलेगा? They will run some distance, then comes out. एंड इसीलिए एक हाइडर पार्ट में बहुत सारा मास हो जाता है. क्लियरली समझे? चलिए, दिस इज ऑल अबाउट, ये है पोजीशन, याद रखिए L1 L2 पोजीशन में स्पाइनल कॉर्ड टैपर हुआ है, called as conus medullaris, which is nervous. We are coming to the transverse section of the spinal cord. Supposed to be मान लेते हैं, this is actually the transverse section of the spinal cord. हम इसको ऐसे डिवाइड कर रहे हैं. This part is called as, देखिए आपके सामने हम खड़े हैं, तो मेरे बैक साइड में जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड तो डॉर्सल है, सॉरी डॉर्सल है, तो स्पाइनल कॉर्ड अगर बैक साइड में है मेरा, तो स्पाइनल कॉर्ड का फ्रंट साइड क्या हो जाएगा? वेंट्रल होगा. वेंट्रल को हम लोग बोलते हैं एंटीरियर ईयर, तो बैक साइड क्या हो जाएगा? डॉर्सल और पोस्टीरियर. तो ये पार्ट क्या है? ये डॉर्सल है कि नहीं, और पोस्टीरियर. ये साइड क्या होगा? वेंट्रल और व्हाट? एंटीरियर. पोस्टीरियर ऊपर को और एंटीरियर. यही बोलते हैं. Ventral part is, ventral side is anterior part, dorsal side is posterior part. Here in case of spinal cord, उसका नॉर्म ऐसे ही हम लोग लिखेंगे. आगे चल के आपको यही सब क्वेश्चन पूछेगा कि which is the posterior spinal nerve and anterior spinal nerve, which is main spinal nerve. आपके बॉडी में मैक्सिमम ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट है? वेंट्रल साइड में. तो जो स्पाइनल नर्व वेंट्रल की तरफ आएगा वो मेन स्पाइनल नर्व होगा कि वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे कुछ इधर. तो लेबलिंग में आते हैं. This is dorsal sulcus. This is dorsal septum. एंड स्पाइनल कॉर्ड में क्या होगा? ग्रे मैटर इनसाइड होगा कि आउटसाइड होगा? इनसाइड होगा. लेकिन व्हाइट मैटर कहाँ पे होगा? आउटसाइड होगा. Supposed to be this is the gray matter which is present inside. And gray matter का appearance you look like what? A butterfly set. क्या लेना?
This is the central canal. Central canal otherwise called as neurocell. The difference between the neural canal and central canal. Neural canal is the cavity of the vertebral column through which the spinal cord passes. Again, central canal क्या है ना? The canal present inside the spinal cord, and that is what the filled with PSA. And as told you already, if the central canal of the spinal cord is communicating with what? The fourth ventricle of medulla oblongata. और इसीलिए यहाँ पे CSF है. This is dorsal horn. Dorsal horn or dorsal root or dorsal column. And remember, dorsal is sensory in nature. Sensory nature मतलब यहाँ पे एंट्री करेगा या एग्जिट करेगा? एंट्री करेगा. Sensory impulse will be entered into the spinal cord through what? Na dorsal horn or root. This is white matter. देखिए तीन अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट हो गया कि नहीं? Because of the presence of the gray matter in the center, white matter is differentiated into three parts. This is called as what? Na dorsal funiculus or white matter. This is ventral and this is lateral. Clear? This is dorsal funiculus. Funiculus का मतलब क्या है ना? White matter. Funiculus का मतलब है white matter. This is lateral funiculus. This is gray matter. This is ventral horn or root or column, and which is motor in nature. इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन निकलेगा इधर से निकलेगा. And this is ventral funiculus. Funiculus का मतलब एक जगह पे मैंने लिख दिया है white matter. So remember, this is the transverse section of spinal cord. This structure is ventral sulcus. जैसे dorsal में sulcus था वैसे ventral में भी sulcus है, लेकिन deep sulcus कौन सा है? Ventral sulcus is deep. I hope आपको समझ में आ गया. Now we will come to the peripheral nervous system. I told you what is the meaning of central nervous system. Now the nervous system which is centrally present, brain and spinal cord, and all the nervous system which is apart from the central is called as what? The peripheral. The peripheral में क्या आ जाएगा ना? All the cranial nerves and all the spinal nerves. Now what is the function of? ये जो मैंने आपको white matter and gray matter लिखाया है, white matter का and gray matter का function क्या है? What is the role of white matter? What is the role of gray matter? Remember, white matter and gray matter. White matter का function क्या है? That is communicate with
ब्रेन। अब देखिए ऊपर तो ब्रेन है ना, स्पाइनल कॉर्ड तो नीचे हो गया, ब्रेन तो ऊपर है। जो इंफॉर्मेशन जाएगा वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जा सकता है और डायरेक्टली भी ब्रेन जा सकता है। इफ इट इज cranial nerve then it is directly go to the brain. If it is spinal nerve then it is passes through the spinal cord then brain. तो brain and spinal cord के बीच में जो communication होता है उसको कौन communicate करेगा? White matter. So white matter of the spinal cord is actually communicating with the brain. लेकिन जो gray matter हो गया that actually control the reflex action. The reflex action does not under the control of brain. It is completely under the control of spinal cord. And who control the reflex action of the spinal cord? ना gray matter. तो white matter हो गया communicate with the brain. And gray matter हो गया control reflex action. So we will discuss about the reflex action later on. I'm coming to the next topic. Cranial nerve. Sorry, peripheral nervous system. उसके अंदर हम लोग cranial जाएंगे. So peripheral nervous system और PNS. उसके अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं cranial nerve. Number of cranial nerve is actually 12 pair in amniotes. Amniotes कौन कौन होते हैं? The reptile, apes, and mammals. These are called as amniotes. So amniote के केस में 12 pair है and 10 pair in case of anamniote. Anamniotes में आ जाएंगे कौन सा ना? Fish and amphibians. So they contains the 10 pair of cranial nerves. And here we can say last 2 pair is absent. Last 2 pair is absent in case of anamniotes. Number, name, then your nature, then origin. Number क्योंकि 12 पेयर है 1 2 3 रोमन लेटर में होगा ये सब नंबरिंग 5 6 7 8 9 10 11 and 12. नेम हम लोग फर्स्ट लेटर ही लिखे हैं यहाँ पे olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducens, facial, auditory, glossopharyngeal, vagus, spinal accessory and hypoglossal. समझ में आएगी नहीं मैं क्या बोला? ठीक है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन भी दूंगा एक एक पॉइंट सब में ना. नेचर सेंसरी मोटर मिक्स्ड सेंसरी
mixed, motor. Now the first two originated from forebrain. Next two originated from midbrain. Next four originated from pons. And the last four originated from medulla. तो सेंसरी अगर बात करें, सेंसरी का नंबर क्या हो गया ना, फर्स्ट, सेकंड, देन 8. How many pair? 3 pair. Motor, third, fourth, then sixth, then 11th, and then 12th. How many pair? 5 pair. Mixed, fifth, 7th, 9th, and 10th. 4 pair. फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा. मैच दी कॉलम करके देगा कि हाउ मेनी इज सेंसरी, हाउ मेनी इज मोटर, हाउ मेनी इज मिक्स्ड, ऐसे करके देगा. बाकी हम लोग डिस्कशन करेंगे सबका फंक्शन के बारे में, एक एक लाइन इसका क्या फंक्शन. स्टार्ट करें. लेट्स स्टार्ट द फंक्शन रिलेटेड. सब एक एक पॉइंट करके लिख लेते हैं, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं. फर्स्ट आता है ऑल्फैक्ट. ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या, फंक्शन क्या हो जाएगा, स्मेल और ऑल्फैक्शन. नंबर 2 ऑप्टिक, विजन और साइट. थर्ड oculomotor. Function is movement of eyeball. Iris, lens, eyelid. Trochlea. Trochlea is the smallest cranial nerve. याद रखना. And it is helps in rotation of eyeball. Rotation of eyeball. Next है trigeminal. Trigeminal इसको हम लोग बोलते हैं डेंटिस्ट नर्व. Because it is related with the teeth and pain feel करता है teeth में. So it is associated with the functions like receive the stimuli from forehead, skull, upper eyelid, nose, teeth. Plus this helps in the movement of tongue
जॉ मसल्स, जॉ मसल्स का मूवमेंट करेंगे तो ये अल्टीमेटली च्यूइंग में हेल्प करेगा कि नहीं? नेक्स्ट वी आर कमिंग टू abducens. Abducens, rotation of fiber. Next is facial. फेशियल का फंक्शन क्या होगा? आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो कंट्रोल कौन करेगा? फेशियल cranial nerves. So it is helps in the test, facial expression, movement of neck, and also helps in chewing. Next is auditory. Auditory, hearing and equilibrium. Next is glossopharyngeal. Glossopharyngeal is concerned with taste, touch, movement of pharynx. Movement of pharynx means swallowing. Most important is 10th cranial nerve, that is vagus. Vagus cranial nerve याद रखिए, ये longest, highly branched, only which enter into the body. Enter through foramen magnum. तो फोरामेन ऑफ मैग्नम को क्रॉस करके सिर्फ वेगस क्रेनियल नर्व भी आपकी बॉडी में एंट्री किया है. तो हार्ट, लंग्स, किडनी, गोनाड्स एटसेट्रा कौन कंट्रोल करेगा? वेगस. एंड इसीलिए सबसे हाईली ब्रांच भी है. साउंड प्रोडक्शन, रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स, peristalsis, swallowing, secretion of gastric juice, and intestinal juice. Slow down the heartbeat rate. A very important, वेगस हार्टबीट और कार्डियक एक्टिविटी को स्लो करता है कि फास्ट करता है? स्लो करेगा. तो इसीलिए क्वेश्चन पूछेगा कि स्टिमुलेशन ऑफ द वेगस, स्टिमुलेशन ऑफ द वेगस लीड्स टू इंक्रीज द हार्टबीट रेट और डिक्रीज द हार्टबीट रेट. डिक्रीज द हार्टबीट रेट. अगर हार्टबीट रेट डिक्रीज हो रहा है तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि कार्डियक साइकिल का नंबर कम हो गया. कार्डियक साइकिल 72 टाइम है तो हार्टबीट भी 72 टाइम है. तो ये क्या कर रहा है? कार्डियक साइकिल का एक्टिविटी को स्लो डाउन कर रहा है. सो हार्टबीट डिक्रीज किया तो ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इंक्रीज करेगा कि नहीं? समझे? कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन इंक्रीज करेगा तो हार्टबीट रेट डिक्रीज करेगा. इनवर्सली रिलेटेड. नेक्स्ट है 11th cranial nerve, that is spinal accessory. अब इसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आएंगे तो और ये वैगस के ऊपर थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे. स्पाइनल एक्सेसरी,
11th cranial nerve. Movement of pharynx. Pharynx, neck, and shoulder. And the last is hypoglossal. Movement of tongue. मैं मार्क कर देता हूँ कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कंप्लीट है. मैं मार्क कर देता हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट आप कम से कम याद रखना है. मैं खाली फंक्शन पहले अंडरलाइन कर देता हूँ. सिर्फ वही फंक्शन याद रखिए. क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग cranial nerves are associated with the tongue. देखिए तो टंग का मूवमेंट हो या टेस्ट हो, कौन कौन cranial nerve इसके साथ लिंक है. पहले हो गया कौन सा, ट्राइजेमिनल मतलब फिफ्थ cranial nerve. उसके बाद देखिए फेशियल टेस्ट है कि नहीं, ग्लोसोफेरेंजियल टेस्ट है कि नहीं, समझ में आ रहा है. एंड नेक्स्ट क्या है, हाइपोग्लोसस. वैसे ही which of the following or how many of the following cranial nerves are associated with the eyeball movement and rotation. मैक्सिमम यही दो चीज से क्वेश्चंस आता है. रोटेशन ऑफ आईबॉल, ट्रॉक्लिया. मूवमेंट ऑफ आईबॉल, ऑक्यूलोमोटर. रोटेशन ऑफ आईबॉल, एब्ड्यूसेंस. दिख रहा है. और यही है क्वेश्चन. बाकी वेगस तो हम लोग को छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल. मैंने जितना अंडरलाइन कर दिया कम से कम इतना याद रखना. ये सब स्टडी पैक आपके जो बुक्स है एनसीईआरटी बुक में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है. एक जगह पे तो लिखा नहीं, अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है. कहीं पे समरी में लिखा हुआ है, कहीं पे एनसीईआरटी का जो आपका और एक बुक है ना एग्जाम्पलर में लिखा हुआ है. इसीलिए अलग अलग जगह पे ये मेंशन है बोल के हम लोग एक जगह पे इसको लिख लिए. तो वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट, स्पाइनल नर्व्स. स्पाइनल नर्व 31 पेयर ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं. 31 पेयर एंड ऑल आर मिक्स्ड. Why so? As sensory क्या है, डॉर्सल है कि वेंट्रल है. पढ़े थे ना अभी हम लोग. सेंसरी क्या है, डॉर्सल है कि वेंट्रल है. डॉर्सल है. एंड मोटर that is ventral. Joint before releasing out. So as sensory and ventral, sensory or dorsal or motor or ventral joint before releasing out through intervertebral foramen
So are mixed in nature. मिक्स्ड होने के पीछे कारण क्या है? Why it is mixed? ना अगर सेंसरी मोटर दोनों ज्वाइन कर जाएंगे एक जगह पे तो बाकी सब तो मिक्स हो जाएगा ना. मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखा दूं. Let's see the diagram. मार्क कर लीजिए. सपोज टू बी ये है वर्टिब्रल कलम. वर्टिब्रल कलम में जो वर्टिब्रल बोन है ओपनिंग होगा कि नहीं? दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? इंटरवर्टिब्रल फोराmen. Now this is dorsal horn, this is ventral horn. See, ये dorsal and ventral just before the intervertebral foramen ये joint हो गए कि नहीं? ज्वाइन होने के बाद ये बाहर निकलेगा. निकलने के टाइम में ये 3 to 4 ब्रांचेस में कन्वर्ट होगा. नेचर अगर देखें ये तो सेंसरी है, ये तो मोटर है. सेम टू सेम हियर भी होगा, ऐसे ही होगा. ये जो डायग्राम आपके सामने है दिस इज एक्चुअली डायग्राम ऑफ वन स्पाइनल नर्व. दिस इज द डायग्राम ऑफ वन स्पाइनल नर्व. वैसे कितना स्पाइनल नर्व होगा? 31 पेयर. दिस इज डायग्राम ऑफ वन स्पाइनल नर्व. लेबलिंग कर लेते हैं. समझ में आ रहा है ना? ये देखो ये स्पाइनल कॉर्ड है. ये दोनों साइड में क्या होगा? न्यूरल कैनल. ये वर्टिब्रल कॉलम है. दिस इज डॉर्सल रूट गैंग्लियन. देयर इज नो वेंट्रल रूट गैंग्लियन, डॉर्सल रूट गैंग्लियन होता है. दिस इज सेंसरी, दिस इज मोटर. यहाँ पे मिक्स हो गया. दिस इज इंटरवर्टिब्रल फोराmen. दिस वन इज कॉल्ड एज, जो 4 ब्रांचेस में कन्वर्ट होता है. फर्स्ट इज डॉर्सल ramus, और ramus dorsalis. This is ventral ramus.
or ramus ventralis? Which is the main? Which spinal nerve is the main spinal nerve? Ventral क्या है? Anterior है कि posterior है? Anterior. And anterior क्या था? क्योंकि आपके बॉडी में मैक्सिमम ऑर्गन जो है वो वेंट्रल साइड में है, तो वेंट्रल साइड को जो आएगा, क्योंकि ये फ्रंट साइड में आ रहा है ना, आगे की तरफ आ रहा है, मतलब वेंट्रल साइड में आ रहा है ना, दैट इज व्हाट इज द मेन स्पाइनल नर्व. द नेक्स्ट इज दिस वन इज ramus meninges. This one is ramus communicans. And ramus communicans का जो location है, that is only located from T12 to L3. What is the location of ramus communicans? T12 to L3. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं each spinal nerve after releasing out to intervertebral foramen it branches or it branched into 3 to 4 branches. 3 branches कहाँ पे है? 4 branches कहाँ पे? 3 branches होगा, देखो बात को समझिए. T12 to L3 तक ramus communicans present है, उससे पहले इसके बाद होगा क्या? Before T12 and after L3 there is no ramus communicans. लेकिन before T12 and after L3 ये तीनों तो, बाकी तीनों तो होगा ही, बाकी तीनों हर जगह है, लेकिन ramus communicans सिर्फ T12 to L3 तक. तो फिर 3 to 4 branches मैंने जो लिखा है, 3 branches कहाँ पे होगा? Before T12 and after L3. And that is what? That T1 to T11 and L4 to coccyx 1. समझे कि नहीं समझे? लेकिन 4 कहाँ पे होगा? सिर्फ T12 to L3. कंसेप्ट लेने में कोई दिक्कत नहीं, कल कंसेप्ट लीजिए थोड़ा सा. मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, कम से कम आइडिया तो होगा कि स्पाइनल नर्व कैसे होता है. तो डॉर्सल रूट गैंग्लियन इज सेंसरी इन नेचर और मोटर इन नेचर. सेंसरी नेचर. अगर डॉर्सल रूट गैंग्लियन अगर डैमेज हो गया, what will be happen? Sensory impulse will be affected or motor? लिख नहीं रहे, कोई प्रॉब्लम? नो डायग्राम, कुछ नहीं, मुझे देखने के लिए है. मुझे बंगाली समझ में नहीं है. तो इस बैच में नया है. कब से आए? अब तो हिंदी नहीं बोल सकता है क्या? ट्रांसलेटर की जरूरत है तुझे? ट्रांसलेटर चाहिए तो हिंदी हिंदी पिक्चर देखता है? नहीं देखता है? हिंदी सीरियल नहीं देखता है? बंगाली छोड़ के कभी जिंदगी में बाहर नहीं जाएगा? वहां पे बंगाली नहीं चलता है. क्लास में बैठना है तो लिखना है, नहीं लिखना है तो क्लास में नहीं बैठना है. चॉइस इज योर्स. कंप्लीट है.
We are coming to which is the main spinal nerve. वेंट्रल और एंटीरियर, तो ऐसे वेंट्रल और एंटीरियर और रैमस वेंट्रलिस कितना होगा, कितना होगा? अबे ये तो वन पेयर है। देखिए आप लोग गधे हैं इसीलिए बोलते नहीं है आंसर, फटाक से बोलना चाहिए। So, एक स्पाइनल नर्व पेयर हमने देखा है तो वन पेयर ऑफ रैमस वेंट्रलिस है, तो टोटल कितना होगा? 31 पेयर होगा, सिंपल सी बात भाई। एंड ऐसे बहुत सारा वेंट्रल स्पाइनल नर्व, they join to form a network, and that network is called as plexus. Plexus word तो है NCERT में है plexus. What is plexus? Now it is a network of which nerve fiber? Ventralis or anterior spinal nerve. इसीलिए वहां पे लिखा है कि main spinal nerve. And which is the main spinal nerve? The ventral. Plexus. Network of nerve fiber. And which nerve fiber? The anterior or main spinal nerve. मैं बिल्कुल डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, खाली प्लेक्सस का डेफिनेशन लिखा के इतना प्लेक्सस टोटल खाली नाम मेंशन कर देता है। तो नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर इज कॉल्ड एज प्लेक्सस। आप लोग पढ़े थे मायोटेरिक प्लेक्सस, मेसेनर प्लेक्सस, व्हाटनॉट, एलिमेंट्री कैनल, वो तो अलग बात है। यहाँ पे प्लेक्सस हमारे बॉडी में कितना प्रेजेंट है ना, 5 डिफरेंट टाइप्स। सर्वाइकल प्लेक्सस, thoracic plexus, lumbar plexus, sacral plexus and ये जो ब्रैचियल प्लेक्सस है जिसको हम लोग, सर ये तो thoracic plexus को हम लोग ब्रैचियल प्लेक्सस भी बोलते हैं। lumbar, sacral and coccygeal plexus। आप समझिए ये जो प्लेक्सस बना है कौन सा स्पाइनल नर्व्स के साथ मिलके बना है, समझ में आ रहा है ना? एक्चुअली मिक्स है, डिटेल्स में हम लोग स्किप कर रहे हैं। सो वी आर कमिंग टू द स्पाइनल नर्व कंप्लीट हो गया, क्रेनियल नर्व्स कंप्लीट हो गया, मतलब हम लोग का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया। अभी स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे, याद करिए कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का दो पार्ट है, सोमैटिक, ऑटोनोमस। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑटोनोमस। ऑटोनोमस के अंडर क्या क्या है? सिंपैथेटिक एंड लेट्स स्टार्ट। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ANS। हम डायरेक्ट लीड को टेबलेटेड फॉर्म में लिखते हैं, तो एक्सप्लेन भी करूंगा और लिखा भी दूंगा। Just a minute, hold on everyone.
Let me show you a diagram. Let's see this. So not going for you. और अच्छा कुछ जरूरत नहीं डाउनलोड करने की। इस डायग्राम से हम लोग को कोई मतलब नहीं। एक आइडिया देने के लिए कि हम लोग सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक पढ़ेंगे उससे पहले समझना तो पड़ेगा कि भाई सिंपैथेटिक है क्या पैरासिम्पैथेटिक है क्या। फर्स्ट पॉइंट इज sympathetic and parasympathetic both present in your body. मतलब दोनों साइड में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी है, दोनों साइड में पैरासिम्पैथेटिक भी है, राइट। सपोज टू बी दिस इज द साइड, लेफ्ट साइड ये पैरासिम्पैथेटिक है, राइट साइड का सिंपैथेटिक है। जस्ट सी, एज यू कैन सी सिंपैथेटिक पहले देखिए, एज यू कैन सी द सिंपैथेटिक nervous system is only and only controlled by the spinal nerves. दिख रहा है? Which spinal nerve? The thoracic spinal nerve and lumbar spinal nerve. ये जो है green color and purple color है. Thoracic and lumbar. That is why the sympathetic nerves are called as thoracico-lumbar outflow. ठीक? अगर हम लोग पैरासिम्पैथेटिक देखेंगे तो पैरासिम्पैथेटिक इज अंडर द कंट्रोल ऑफ बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बाय मींस ऑफ cranial nerve as well as by spinal nerves, and that is why it is called as craniosacral outflow. क्या है? तो सिंपैथेटिक क्या हो गया? craniosacral. पैरासिम्पैथेटिक क्या हुआ? पैरासिम्पैथेटिक हो गया craniosacral and sympathetic क्या हो गया? thoracico-lumbar. याद रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। And which cranial nerves are associated with the parasympathetic? The 3rd, 7th, 9th and 10th. ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये कौन सा cranial nerve है? 3rd, 7th, 9th and 10th. And ये जो sacral है वो कौन है ना? S2, S3, S4. S2, S3, S4 sacral. Cranio क्या हो गया? The 3rd, 7th, 9th, 10th. Craniosacral outflow. पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक क्या हो गया ना? thoracico-lumbar outflow. कौन सा thoracic? T1 to T12, L1 to L3. अभी हम इसीलिए पढ़े थे उसको, ramus communicans. तो ramus communicans का फंक्शन कहाँ पे है? सिंपैथेटिक. ramus communicans is controlled by, आपको बाहर जाना है, मुझे लग रहा है कि आप बार बार घड़ी देख रहे हैं, आपको बाहर जाना है, आई थिंक सो, मुझे सब दिखता है, तो टेंशन ना ले, समझा ना। और दोबारा देखेगा तो बाहर जाएगा। मैं आज 15 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, ठीक है, मजा तभी तो आएगा। समझे बात किसको? सो विच इज craniosacral, which is thoracico-lumbar, क्लियर है। सेकंड एंड द लास्ट इज, जो ब्लू कलर में देख रहा है ना, ये चेन गैंग्लिया है, चेन ऑफ गैंग्लिया 21, बहुत जरूरी नहीं है, मैं खाली बोल रहा हूं, 21 serially ganglia are present called as chain ganglia, and it is called as sympathetic trunk. The sympathetic trunk is present in the sympathetic nervous system, absent in the parasympathetic. तो डिफरेंस आपको डायग्रामेटिकली समझ में है?
लास्ट पॉइंट, सिंपैथेटिक नर्व जहां जहां एंड हुआ है, पैरासिम्पैथेटिक भी वही एंड हुआ है. Means every organ is innervated with the sympathetic nerve as well as by dual innervation. Means the heart is controlling during the stress condition and the heart is controlling during the normal condition. So sympathetic control करता है every activity of your body during the stress or emergency, and the same organ is to be under the control by the parasympathetic during the normal condition, and that is by dual. Exception to skin. स्कीन में सिंपैथेटिक सिर्फ और सिर्फ इनर्वेट किया है, नो पैरासिम्पैथेटिक. क्योंकि स्किन में आपका जो स्वेट ग्लैंड, स्किन में जो आपको एरेक्टर पीली मसल्स है ना, हेयर जो इरेक्टेड होता है, तो पाइलो इरेक्शन कब होता है? जब आप कंडीशन, जब स्ट्रेस में होते हैं, डर जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तब ये हेयर इरेक्टेड हो जाता है, पाइलो इरेक्शन. तो सिंपैथेटिक नर्व बेंडिंग होगा कि पैरासिम्पैथेटिक? स्वेटिंग, स्ट्रेस, टेंशन में. इसीलिए स्वेट ग्लैंड एंड एरेक्टर पीली मसल्स ऑफ द हेयर रूट आर ओनली सिंगल इनर्वेशन. इट इज नॉट डुअल, इट इज सिंगल. समझ में आया? एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंपैथेटिक नर्व बेंडिंग में सीक्रेट होता है एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, एंड दैट इज व्हाई सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स आर एड्रेनर्जिक. पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर के नर्व बेंडिंग में क्या सीक्रेट होता है ना? एसिटाइल कोलिन. दैट इज व्हाई पैरासिम्पैथेटिक्स आर कोलिनर्जिक. कोलिनर्जिक पैटर्न्स बहुत ही क्लियर. बाकी फंक्शन मैं आपको बताऊंगा लिखते लिखते. ऑटोमेटिक जैसे एड्रेनलिन सीक्रेशन स्टॉप हो जाएगा. एड्रेनलिन रशेस कब होते हैं बॉडी में? जब आप किसी सिचुएशन को फेस करते हैं, बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन, तब एड्रेनलिन रशेस हो जाएगा. तो एड्रेनलिन उसको तो कंट्रैक्ट कर देगा, स्टिमुलेट हो जाएगा. जैसे ही एड्रेनलिन खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा. कैरेक्टर में आते हैं वन बाय वन. नंबर वन, कंडीशन और कंट्रोल. सिंपैथेटिक क्या हो जाएगा? स्ट्रेस और इमरजेंसी. दिस वन इज नॉर्मल. Number two, sympathetic trunk, present or absent? Present. And that to be one pair. दोनों साइड में हो. हम लोग तो हाफ हाफ डायग्राम दिख रहे थे. पैरासिम्पैथेटिक में क्या होना? आपस. Number three, origin. सिंपैथेटिक हो जाएगा थोरैसिक और लंबर. आउटपुट मीन्स T1 to L3. तो कंप्लीटली स्पाइनल नर्व हुआ कि नहीं? तो कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड. Whereas parasympathetic is craniosacral outflow. एंड ये क्रैनियो कौन कौन है? अभी मैंने बताया थर्ड, 7, 9th एंड 10th. सैक्रल कौन सा है ना? S2, S3
and S4. So it is under the control of both brain and spinal cord. Point number 4. Nature of nerve fiber. Nature of nerve fiber, the sympathetic is adrenergic. As it secrete adrenaline and noradrenaline at normal. So this is adrenergic. This one is cholinergic. As it secrete acetylcholine at normal. याद रखना, sympathetic nerve fibers are adrenergic, parasympathetic nerve fibers are cholinergic in nature. बाकी फंक्शनल पार्ट पे आते हैं. First we are coming to straight gland. स्वेट ग्लैंड एक एक्सेप्शनल कैरेक्टर है, क्योंकि स्वेट ग्लैंड में सिंपैथेटिक नर्व फाइबर एड्रेनलिन सीक्रेट नहीं करता है, ये एक्सेप्शन है. स्वेट ग्लैंड में सिंपैथेटिक नर्व फाइबर एसिटाइलकोलिन सीक्रेट करता है, ये एक्सेप्शन है, याद रखना पड़ेगा. तो स्वेट ग्लैंड सिंपैथेटिक क्या होगा, पर्स्पिरेशन होगा कि नहीं, स्टिमुलेट्स पर्स्पिरेशन. पर्स्पिरेशन का मतलब क्या है, स्वेटिंग. Sweating is stimulated by the, that is sympathetic, but it is what? Secretes acetylcholine. So cholinergic. ये क्वेश्चन आता है, स्वेट ग्लैंड एसिटाइलकोलिन सीक्रेट होगा नॉर्म एंडिंग में, सो cholinergic. लेकिन पैरासिम्पैथेटिक तो नो इनर्वेशन होगा ना. So that is why straight gland is dual innervation or single innervation. Single innervation. Number 6. Erector pili. Erector pili muscles or hair root muscles. It causes piloerection. मतलब erection of hair. And this is no innervation. That is also single innervation. Completed. Next, number 7. Iris muscle. Contraction. Contraction of iris muscle leads to
देखिए कॉन्ट्रेक्शन अगर आइरिस मसल होगा तो प्यूपिल का साइज इंक्रीज करेगा कि नहीं? तो who control the contraction of iris muscles? ना sympathetic nerve fiber. So who causes the dilation of pupil? The sympathetic. इसीलिए हम लोग डर जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो आई का साइज इंक्रीज कर जाता है, प्यूपिल का साइज इंक्रीज करेगा. सो इट इज डायलेशन ऑफ प्यूपिल. दिस इज रिलैक्सेशन. Constriction of pupil. Constriction of pupil. Next, number 8. Bronchial muscle. हम लोग जब भी टेंशन में आ जाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो हम लोग का रेस्पिरेशन फास्टर होता है कि स्लो होता है? वी नीड मोर ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन आपको ज्यादा चाहिए, तो आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन फास्टर हो जाता है. तो ब्रोंकियल मसल्स प्रेजेंट इन द ब्रोंकियल्स should be dilate the bronchi or constrict the bronchi. डायलेशन होगा तभी तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन फास्टर होगा, इफेक्टिव होगा. सो हु एक्ट एज द ब्रोंकोडायलेशन? एंड हम लोग नॉर्मल में आ जाते हैं तो रेस्पिरेशन नॉर्मल हो जाता है. सो कंस्ट्रिक्शन कौन करेगा? राइट. ब्रोंकियल मसल्स में वाइडेंस एयर पैसेज टू फैसिलिटेट ब्रीथिंग. एंड दिस विल बी, क्या करेगा? ये नैरो करेगा. नॉर्मलाइज कर देंगे. हम लोग जब स्ट्रेस में होते हैं तो भूख कम लगता है या ज्यादा कम लगता है? मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड विल बी स्टिमुलेटेड और इनहिबिटेड बाय द सिंपैथेटिक. पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट करेगा. पेरिस्टालसिस which is occurs through the alimentary canal will also inhibited by the sympathetic. तो स्लो डाउन करेगा कि नहीं? तो नंबर 9, डाइजेस्टिव ग्लैंड. इसीलिए तो इंडाइजेशन होता है. क्यों होता है? क्यों? अगर ओवर स्टिमुलेशन हुआ, अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो सिंपैथेटिक आपके बॉडी में हर वक्त काम करेगा. सब टेंशन में रहते हैं, टेंशन में रहेंगे तो सिंपैथेटिक आपके बॉडी को ऑपरेट करेगा. वो तो डाइजेस्टिव ग्लैंड को इनहिबिट कर रहा है, तो डाइजेस्टिव जूस कम हो जाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम कम हो जाएगा, तो डाइजेशन इफेक्टिव कैसे होगा? डाइजेस्टिव ग्लैंड inhibit, so decrease the secretion of digestive juice. Stimulate the secretion of the digestive juice. Number 10, digestive tract. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या होगा? ये स्टिमुलेट की इनहिबिट पेरिस्टालसिस. इनहिबिट, so slow down peristalsis. Stimulate, so increase peristalsis.
नंबर 11 हार्ट की बात करें, ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। हार्ट क्या होगा? पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक, दोनों में से वेगस किस पे आ रहा है? क्या लिखे थे हम लोग? क्रेनियोसैक्रल, 10th क्रेनियल नर्व था। क्रेनियोसैक्रल में मैंने 10th क्रेनियल नर्व लिखाया था कि नहीं? तो फिर वेगस किस पे आएगा? पैरासिम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक? पैरासिम्पैथेटिक। तो वेगस क्या करेगा? इनहिबिट करेगा कि स्टिमुलेट करेगा? इनहिबिट, एज इट कम्स अंडर पैरासिम्पैथेटिक। एंड वेगस क्या होगा ना? कॉलिनर्जिक होगा, एसिटाइल कोलिन। पैरासिम्पैथेटिक। हार्ट stimulation by the sympathetic to increase heart beat rate, whereas parasympathetic inhibit, so decrease heart beat rate. Number 12, urinary bladder. एक्सक्रीशन चैप्टर थोड़ा सा याद करिए। मैंने आपको बताया था कि मैच्योरेशन तभी होगा जब यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड स्फिंक्टर मसल्स रिलैक्स होगा, याद है? देन ओनली दैट गिव्स राइज टू मैच्योरेशन। जब हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो मैच्योरेशन कम हो जाता है। मैच्योरेशन का क्वांटिटी क्या हो जाता है ना? कम हो जाता है। तो मतलब सिंपैथेटिक यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि रिलैक्स कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मैच्योरेशन होगा। दिमाग काम नहीं कर रहा है, एंटेना तो है ही नहीं, तो काम कैसे करेगा? दिमाग यहाँ पे नहीं है, क्लासरूम में नहीं है, बाहर घूम रहा है। ऑब्वियसली sympathetic will slow down the micturition process, will inhibit the micturition process. How? Relaxes the urinary bladder. Urinary bladder relax होगा तो size urinary bladder का बढ़ेगा कि नहीं? तो more and more amount of urine will be accommodated there. Contract होगा तो pressure बढ़ेगा तो micturiation हो जाएगा। वो कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, सब सिंपल है, बस सही जगह पे आपका दिमाग स्ट्राइक करना पड़ेगा। Urinary bladder relaxes, so prevent micturition. पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा ना? कॉन्ट्रैक्शन, so stimulate micturition. And the last one is artery. Number 13. आर्टेरीज को क्या करेगा? ये वैसो कंस्ट्रिक्टर है कि वैसो डायलेटर है? सिंपैथेटिक कंस्ट्रिक्ट करेगा, तो कंस्ट्रिक्ट करेगा तो ल्यूमेन का साइज नैरो होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो सिंपैथेटिक प्रेशर इंक्रीज करता है कि? दैट इज बिकॉज़ दे आर वैसो कंस्ट्रिक्टर। This is vasodilator to decrease blood pressure. जितना मैंने पॉइंट्स दिखा दिया वो पॉइंट से ही क्वेश्चंस रहेगा।